here. I hope you are doing well during this time and you are trying to fight with COVID-19. Students, as you know that you are staying at your home and you are trying to learn everything from by using the online classes. Your teachers also doing hard work to get more and more during this COVID time. Students, right now you are all knowing that your attendance is going well. Each and every student is trying to make view of my videos. So for this love and affection, giving a one kind of motivation to me so that I can just move forward and forward. So with this, let me introduce myself. I am your computer science teacher Virendra and I am here to give you the most important lecture for this topic. Okay? So right now I have not mentioned the topic here because this is the one kind of thing I will give you during the lecture. But right now the name of the chapter is using mail merge in MS Word, Microsoft Word. It means that MS Word giving a very important feature for you. The name of that feature is mail merge. Right, students? So students, before proceeding the further, I just want to give you a warm welcome to on my YouTube channel. With this, I am just going to start the lecture here, and in this lecture, what topic I am just giving to just we have a little bit intro for that, right? So what topic is going through? Number one. First, in this video, we will try to complete the introduction part. Then, after completing the introduction part, we have the component of mail merge. Then, in this, one more topic we are going to cover: how to do mail merge. Right? These three topics we are going to cover in this video. Right? And one more thing, I request you don't skip any part of this video because in this video, I will try to give you the practical demonstration for this mail merge. Right? So, let's start. First of all, we'll consider the topic number one, that is introduction. Okay? So, let's erase the board and then we'll continue further. So, students, right now, this is the topic number one and we're going to start. स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बताइए आप, जब कभी भी हम मेल मर्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज मेल मर्ज, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द मेल मर्ज, राइट, व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर दैट, राइट. So the answer of these questions definitely you will get. But before this, first of all, we'll have little bit of introduction about this topic. Microsoft Word. Yes, because that's one kind of a new application for you. As you know that this video may be watched by the students who are studying in class 5th, class 4th, class 6th, maybe any other classes will also view of this video, right? So it's my responsibility to give the each and everything, right? So first of all, we'll have the
First one, that is Microsoft Word. Microsoft Word. So students, right now, what is Microsoft Word? Microsoft Word is the one kind of application software. It's a one kind of application software, right? And what you are going to do with Microsoft Word? We are going to create documents. It is used to create documents, right? So please remember that Microsoft Word is the one kind of application software which is used for creating the documents. That's why this Microsoft Word is also known as word processing software. Word processing software. Word processing software. Right? So please remember, apart from this Microsoft Word, many other kinds of word processing softwares are coming. Okay? So let me have a few examples which is also called for word processing software. You can create your document. Yes. How? So we'll take the second one, other examples of word processing software. Right? Other examples of word processing software. So what will be it? Will be first one is OpenOffice. OpenOffice Writer. OpenOffice Writer. Let's take one more. LibreOffice Writer. LibreOffice Writer. Right? Okay. So I hope students, what is Microsoft Word? Is it clear to you? And apart from this, the other word processing software, other examples, you are also getting understood. Now it's time to move forward. Okay? Now students, if anybody asks you what is the default name of Microsoft Word, what is the default Microsoft, okay, मतलब क्या हुआ कि जब आप Microsoft Word को ओपन करेंगे तो उस समय जो बाय डिफॉल्ट नेम होगा वो क्या होगा? लेट मी राइट द क्वेश्चन. What is the by default name of MS Word file? Okay, so what will the answer? What will be the answer? You will give, okay, do one thing, just give the answer of this question on the YouTube comment. If you give the correct answer, definitely you will have the like from my side. Okay? Okay. Let me give the answer of this. The answer of this one is document 1. Okay? And one more question arrived here. What will be the file extension for MS Word? फाइल एक्सटेंशन क्या होता है और उस फाइल एक्सटेंशन की विड्थ कितनी होती है? यस,
उस फाइल एक्सटेंशन की विड्थ कितनी होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, ये जितना भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ये मेल मर्ज से ही रिलेटेड है। ये एक एमएस वर्ड का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होगा, हम आ जाएंगे मेल मर्ज को। ठीक है, तो मैं बहुत बड़ा वीडियो आपके लिए नहीं बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि एमएस वर्ड और मेल मर्ज दोनों ही चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें हम आंसर आप लिख देते हैं यहां पर। फाइल एक्सटेंशन इसका होता है BOCX। BOCX। अब यहां पर ये जो BOCX लिखा हुआ है, ये 2007 यानी कि एमएस वर्ड 2007, इससे ऊपर के जितने भी आपके वर्जन्स आएंगे उन सभी में आपका BOCX आपका फाइल एक्सटेंशन होगा। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो विड्थ है केवल 4 कैरेक्टर्स की है। यहाँ पर इसमें केवल 4 कैरेक्टर्स ही इस्तेमाल हुए हैं, 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आप बिल्कुल छोटे बच्चे हो, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट? कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। सो यहां तीसरी चीज है हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट पे क्लिक। आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे, कंप्यूटर ओपन करते ही आपके सामने डेस्कटॉप आएगा। डेस्कटॉप में आपका लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको वहां पर एक आपका पॉपअप मेन्यू आएगा। उस मेन्यू में एक जगह लिखा होगा ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स। और जैसे ही आपका ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, आप जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में उस सब की लिस्ट आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक जगह आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, जो भी इसका वर्जन है वो भी आपका लिखा आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब उस ऑफिस के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, उसका जो भी वर्जन है वो आपका आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर इसके बाद वर्ड और जो भी वर्जन है। ठीक है, तो ये जो तरीका है यही तरीका है आपका एमएस वर्ड ओपन करने का। या फिर सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका है कि आप स्टार्ट बटन पे जाइए। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद अब आपको यहां मिलेगा एक बॉक्स मिलेगा जिसको कि कहा जाता है सर्च बॉक्स। यहां पे क्लिक करिए और यहां पर आप टाइप करेंगे, यार इस सर्च बॉक्स में अब आप टाइप करिए विम वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लिखेंगे या वर्ड भी लिखेंगे, तो उससे मैच करते हुए जितने भी एप्लीकेशंस होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे और उस पर आपको उसमें से सेलेक्ट करके आपको डबल क्लिक कर देना है आपको। सो स्टूडेंट्स, this is the one kind of overview of Microsoft Word. Now it's time to come to the main merge topic. So let me erase the board and then we'll proceed further. Okay, students, अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो आप अपना लाइक जरूर दीजिए, अपना कमेंट दीजिए और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, okay students, now it's time to move to the mail merge. Few seconds back I have given the little bit introduction about Microsoft Word, and now it's time to have a little bit small introduction for mail merge, right? So first question arises is what is mail merge and why it is used, right?
So the thing is arises here, what is main merge, right? And second thing, why is it used? ठीक है, अब आपको ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए यहाँ पर। स्टूडेंट्स, एक भी सेकंड के लिए मेरे इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए देखिए, सपोज करिए आपका बर्थडे, राइट? योर बर्थडे इज गोइंग टू सेलिब्रेट मे बी सपोज टुमारो, and you want to invite your 10 or 20 friends, and for inviting you do not use any of the phone call, any of the WhatsApp. You are just trying to do one thing, you are just trying to give the invitation by using this feature, mail merge. Why it is so? क्यों इस्तेमाल करेंगे हम? चलिए मैं बताता हूं आपको। मैं आपका बर्थडे है, आप अपने बर्थडे पर 10 या 20 लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक छोटा सा लेटर आप तैयार करेंगे। आप जब आप उस छोटे से लेटर को तैयार करेंगे, क्या लिखेंगे आप? आई कोल्डली इनवाइटेड माय डियर फ्रेंड्स, माय बर्थडे इज गोइंग टू सेलिब्रेट ऑन टुमारो. You are going to venue name, timing, each and everything is mentioned, right? And once it is done, once the format is ready, then what you will do? At the top, you will write name, address and the contact number. थोड़ा एक बार और आप ध्यान से सुनिए। आपने एक लेटर का फॉर्मेट तैयार किया। In that format, at the top you are trying to mention the name, then after you are trying to mention the address, then contact number, and after that you will try to make the main contents, means venue, date and time, right, and many other things, and in the last you are writing regards and then your name. This is the one kind of format you have made. आपने इस तरह का एक फॉर्मेट बना लिया। अब 20 लोगों को इनवाइट करना है, एक लोगों के लिए फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब आप नेक्स्ट लोगों के लिए क्या करेंगे, आप फिर एक लेटर लिखेंगे आप, और ऐसा आपको 20 बार करना पड़ेगा। यस, यू हैव टू डू द सेम टास्क 20 टाइम। कैसे? एक दोस्त के लिए आपको फॉर्मेट तैयार कर दिया, सब कुछ लिख दिया आपने, इसको आपने एनवेलप पे डाला, पैक कर दिया, दूसरे को फिर ऐसे तैयार किया, तीसरा तैयार किया, और ऐसे करते करते आपको 20 बार करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी एनर्जी, आपका एफर्ट, आपका टाइम, सब कुछ वेस्ट गया, सब कुछ आपका ज्यादा खर्च हुआ है। इस चीज से बचने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर मेल मर्ज का यूज करना पड़ेगा। यहां पर मेल मर्ज फीचर की हेल्प से आप अपना जो एफर्ट है, अपनी जो एनर्जी है, आपका जो टाइम है, उसको आप बचा सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे आप? अभी तो मैं आपको जस्ट एक बताया है कि मेल मर्ज किस तरीके का है और क्यों यूज कर रहे हैं यहां पर। ओके, सो मेल मर्ज इज नथिंग बट इट्स अ वन काइंड ऑफ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये एक तरह का क्या है? एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। what is doing it? This Microsoft Word feature is trying to combine the two things. Number one, main document. Number two, address list. Address list is also called data source. And when main document and the data source is combined, then it becomes merged document. ठीक है, अभी जो भी कुछ मैंने बताया मैं एक एक करके मैं आपको समझाता हूं बोर्ड पे। सबसे पहली चीज, what is
मेल मर्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द it is the feature of MS Word in which many recipients are invited. Many recipients are invited by using data source or एड्रेस लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह का छोटा सा डेफिनेशन है ये जो मैंने अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है कि मेल मर्ज इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थ्रू विच यू आर ट्राइंग टू इनवाइट मेनी ऑफ द रेसिपिएंट मीन रिसीव करने वाले। ठीक है, मेनी ऑफ द रेसिपिएंट बाय यूजिंग द डेटा सोर्स और डेटा सोर्स इज आल्सो नोन एज एड्रेस लिस्ट। ठीक है, अब इस चीज को करते कैसे हैं, क्या करना पड़ता है इसके लिए, इसको भी देख लेते हैं हम। हाउ टू परफॉर्म मेल मर्ज, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब आप सपोज करिए कि आपका जो मेल मर्ज जो आपका फीचर है, इस फीचर को यूज करने के लिए एमएस वर्ड का ओपन होना जरूरी है। आप सभी लोगों को पता है कि जब आपका एमएस वर्ड ओपन होता है तो ओपन होने के बाद आपको सबसे टॉप में दिखाई देगा टाइटल बार, उसके नीचे मेन्यू बार के नीचे टूल बार के नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पे आप काम करते हैं आप। ठीक है, और आपका जो टूल बार है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहां पर जाना होगा मेलिंग टैब पे। जो मेन्यू बार है, जितने भी आपको मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं उसे हम कहेंगे टैब। ओके, तो मेलिंग टैब में आपको जाना है। फिर यहां पर आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, ये ग्रुप का नाम है स्टार्ट मेल मर्ज और इस ग्रुप में आपको जाना है। जब आप इस ग्रुप में जाएंगे, आप इस ग्रुप में आपको एक और बटन दिखाई देगा। इस ग्रुप में एक बटन दिखाई देगा स्टार्ट मेल मर्ज बटन। आपको स्टार्ट मेल मर्ज बटन आपको दिखाई देगा। अब ये जो स्टार्ट मेल मर्ज बटन है, जब आप यहां क्लिक करेंगे एक लिस्ट आपके खुल के आएगी। उस लिस्ट में आपको 7 आइटम्स दिखाई देंगे, 7। ठीक है, अब आपको उस लिस्ट में से एक ऑप्शन चुनना है आपको। ओके, यहां पर लिख देता हूं मैं, सब मेन्यूज आर अपीयर। सब मेन्यूज आर अपीयर, और इसके बाद यहां पर सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। आपको यहां क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मेल मर्ज करने का। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हैं यहाँ, आप अपना एनर्जी अपना टाइम अपना बचाना चाहते हैं यहाँ, तो आप ये नहीं चाहते कि बार बार आपको एड्रेस लिखना पड़े, बार बार आपको नाम लिखना पड़े। जैसे कि आपने देखा होगा शादी का जो कार्ड होता है, जब कार्ड किसी को मिलता है
तो जब उसको गौर से आप देखते हैं यहाँ, उसमें से जब कार्ड छपा होगा तो कुछ चीजें कॉमन रखी गई हैं। जो अनकॉमन होती है वो क्या होती हैं? नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। यस, अब देखो वो लिफाफे पे, ओके, ऑन द एनवेलप योर नेम इज मेंशन, ओके, इफ द invitees wants to write the address, they can write the address also, your mobile number, right? So this is written on the envelope, but inside the envelope the common things are written. शादी कब होनी है, किस जगह होनी है, एड्रेस क्या है, ये सब कुछ वहाँ लिखा रहता है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पे एड्रेस आपने क्रिएट कर लिया, एक मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया जिसमें कि आपने लिखा हुआ है कि आपका डेट क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, एड्रेस लिस्ट आपकी तैयार है। अब आपने दोनों को मर्ज कर दिया। जैसे ही आपने उसको मर्ज किया, मर्ज करके जो डॉक्यूमेंट बना वो आपका बना मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इन्हीं सब प्रोसेस को आपको सीखना है। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये तो मेल मर्ज ओपन करने का तरीका हो गया, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल आप परेशान ना होंगे इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मुझे और बात करनी है, ठीक है, और उस चीज में हम आपको कुछ नया चीज सिखाने की कोशिश करेंगे जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड है आपका, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमें जो बात करनी है वो एक और टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है, और वो टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज। कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ये भी हम देख लेते हैं। हम नंबर 1 मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा डेटा सोर्स, आप इसी को एड्रेस लिस्ट भी कह सकते हैं आप, एड्रेस लिस्ट, और लास्ट में मर्ज्ड डॉक्यूमेंट जो कि इन दोनों के कंबाइन करने से बनेगा, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट, इन सभी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस। सो आप नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। एक चीज और, आप मेरे इस चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब तो करेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज बेल आइकन गिव्स यू अ वन काइंड ऑफ नोटिफिकेशन, दैट नोटिफिकेशन इन्फॉर्म यू दैट माय वीडियो इज अपलोडेड। ओके, सो इस विश्वास के साथ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को जरूर अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द अदर वीडियोस, राइट? थैंक्स अगेन।